Welcome back, students, to the eighth and the last lesson of surface areas and volumes. This is Minish Gulati on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur, bringing you this lesson today. Today we are going to do exercise 13.4, which has 5 questions, and with that we would end this chapter, surface areas and volumes. First question. Let's read the question first. A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeters. This is what a glass looks like. The base has a smaller radius while the top has a bigger radius. And there is some height h. H is given to us. We'll keep writing given simultaneously. Given h is 14 centimeter. The diameters of the two circular ends are 4 centimeters and 2 centimeters. So, bada wala 4, chota wala 2 centimeters. But these are diameters, right? So, we need to be very careful that we're talking about diameters. So, radius will be half of this. So, R1 will be half of 2, that's 1 centimeters, and half of 4 is going to be 2 centimeters. Find the capacity of the glass. Capacity ka matlab, find the volume of the glass. Now we know the formula for frustum of a cone is 1 by 3 pi into h, the height of the glass, into R1 square plus R2 square plus R1 multiplied by R2. Remember the formulas from yesterday's class. So if you have not seen the previous class, it's highly advisable. First look at lesson number 7, then come to this exercise. So volume, if I substitute the values from given, I will find for h I have written 14, for R1 is 1 square is 1, 2 square is 2 square, and 2 into 1. So that's 7 2s are 14. On solving, I'll get 102.67 centimeter cube. एक और बात हमको पता होनी चाहिए, 1 cubic centimeter is 1 milliliter. So approximately I can say 103 milliliters of water will come in this glass. छोटा ग्लास है, 103 milliliters का ग्लास है, ये छोटा ही है क्योंकि नीचे का बेस छोटा है, 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर है. तो इट्स अ थिन ग्लास. हमारे घर में ग्लास जो होते हैं नॉर्मली 250 ml से लेकर 300 मिलीलीटर्स के होते हैं. ये उससे 3 गुना छोटा है, पतला ग्लास है. ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल? इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 1, राइट गिवन. जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे, फॉर्मूला पहले बताना, बाद में सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर करना. तो आप पॉज कीजिए इस वीडियो को और नोट करें अपनी कॉपीज में. देन गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द स्लांट हाइट. स्लांट हाइट कौन सी हुई है? एल. तो डायग्राम बना लेते हैं और उसी में हम गिवन लिख लेते हैं. स्लांट हाइट एल इज 4 centimeters and the perimeters, that is the circumference of its circular ends, are 18 centimeter and 6 centimeter. तो अब की बार उन्होंने डायमीटर या रेडियस ना देकर they have given us the circumferences of the lower and the upper end. पर कोई बात नहीं, circumference का फॉर्मूला तो हमको आता है. circumference होता है 2 pi r. तो C1 will be 2 pi r1 and C2 will be 2 pi r2. यहां से भी तो हम r1 r2 ढूंढ सकते हैं, राइट? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम. तो ये जो गोल वाला एरिया है ना, ये वाला, ये गोल वाला एरिया, इसका सरफेस एरिया ढूंढना है हमको. तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड R1 from C1. So R1 will be C1 upon 2 pi
C1 is 6 upon 2 pi. That will be 3 by pi centimeters. Let's keep it pi only for the moment. C2 is 2 pi R2. Circumference ऊपर वाला is 18 centimeters. So R2 will be 18 by 2 pi or 9 by pi centimeters. Slant height is known to us, that's 4 centimeters, L. To find curved surface area, remember the formula. We know the curved surface area of frustum of a cone is pi into R1 plus R2 into L. That's 3 by pi plus 9 by pi into 4. I can write 12 by pi, बाहर का pi, अंदर का pi, cancel. यही फायदा है, पाई को नहीं काटा हमने तो अब अच्छा हो गया ना. पाई पाई कैंसिल, तो आई एम लेफ्ट विथ 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, हमको दो सर्कमफ्रेंस मालूम थे, हमने वहां से रेडियस ढूंढा, लेंथ स्लांट लेंथ हमको मालूम है, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L एंड वी गेट आवर आंसर as 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको अगर समझ आ गया तो पॉज कीजिए वीडियो को, डायग्राम बनाइए, बुक अपने पास रखिए. वैसे तो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, बट बुक रखना अच्छी बात होती है. टिक करते रहना चाहिए बुक में कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए. और कहीं पे भी यू हैव अ डिफिकल्टी, प्लीज डू राइट टू मी, लेट मी नो एंड आई विल resolve all your difficulties and questions. That's a promise. Okay. All the best. Now give a pause and I'm going to go to the next question. Question number 3. This question is about a hat which is worn by Turkish people. This is called as fez. Turkish hat is called a fez. इस तरह की hat होती है. A fez, a cap used by the Turks, is shaped like the frustum of a cone. If its radius on the open side, यहाँ पे सिर होता है तो ये radius R1 is 10 centimeter and radius at the upper base is 4 centimeters. So R2 is 4 centimeters. And its slant length is 15 centimeter. Find the area of the material used for making this fez. तो मटेरियल कहाँ लगा है? मटेरियल कर्व में लगा है, प्लस मटेरियल ऊपर इसके टॉप में लगा है. नीचे इसको खाली है, यहाँ तो हमने अपना हेड घुसाना है. यहाँ पर इधर हमारा हेड होगा, इधर आपका हेड होगा, ये and yeah, alright. तो ये टोपी डाल लिया आपने, पक्का फिट कर दो परमानेंटली. alright, let me fit it up permanently as per your desire. तो उन्हें बोला ये, so here, nose and yeah, alright. तो कान भी बना देता. hello okay. नाउ तो हमारा मटेरियल कहाँ लगा है बच्चों? मटेरियल तो हमारा लगा है ऊपर टॉप के सर्कल में और कर्व सरफेस में. नाउ surface area of this cap is the curved surface area of this frustum plus the top area, circular area of the cap. ऊपर का रेडियस R2 है, तो इसका एरिया क्या होगा? सर्कल एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई R2 का स्क्वायर. पहले हमेशा सिंबल में फॉर्मूला लिखना ही चाहिए, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट बच्चों बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इसके सेपरेटली मार्क्स होते हैं एग्जाम में फॉर राइटिंग द फॉर्मूला. तो अगर ये आप स्टेप मिस कर दोगे तो इसके मार्क्स लूज हो जाएंगे, चाहे आपका आंसर सही भी हो तो भी. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पिछले क्वेश्चन में भी किया, दैट्स पाई इनटू R1 लोअर रेडियस प्लस अपर रेडियस इनटू L. दोनों के पास पाई है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या? R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R2 का स्क्वायर. पाई इज 22/7. दिस इज 10 प्लस 4 14 इंटू 15.
and that is 16. 14 15s is 210 plus 16, that's 226. So 22 by 7 into 226, if I multiply on a calculator, I get the surface area of the material used, the cloth used in making the cap is 710.29 centimeter square. राइट देखो फिर से कैप को R1 R2 डायग्राम पक्का बनाना होता है एग्जाम में, मुंह बनाओ ना बनाओ बट कैप बनानी होती है। वैसे तो ये हमारे बुक में गिवन है बट मैंने फिर से खुद से बनाई है, ये शक्ल ये दी हुई है वहाँ पर, बट ऐसे खुद से मैंने कलरफुल वाली कैप बनाई है। किसी को पसंद हो तो अपने निकाल के ले जाओ अपने सिर पे लग। ओके नाउ समझ आया बच्चा लोग, बच्चा पाठी? आज लास्ट डे हमारा, उसके बाद यू हैव 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन ब्रेक, तो 1 महीना है आपके पास। 1 महीना मतलब 30 डेज। 30 डेज में आपको 5 सब्जेक्ट्स करने हैं, तो यू हैव हर सब्जेक्ट को 2-2 बार तो रिवाइज करोगे ही आप। सो पहले 20 डेज आप अपने 5 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो, तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 डेज हैं पर सब्जेक्ट। मैंने कल लिखा है ग्रुप में आपको, यू हैव 4 चैप्टर्स हमने मैथ के किए हैं, ऐसे ही 4 चैप्टर हमने साइंस के भी किए हैं। तो आपके पास 1 दिन में आपको 1 चैप्टर रिवाइज करना है अच्छे से। 20 दिन में आपका ये काम हो जाएगा, और फिर आपको 10 डेज में एक बार सेकेंड रिविजन करनी है और टेस्ट के लिए तैयार रहना है। 10th क्लास बोर्ड क्लास है, अच्छा बनना है हमको, अच्छे मार्क्स लेने हैं, और ये मार्क्स आपके साथ रहते हैं हमेशा। सो यू हैव टू रियली डू वेरी वेल, प्रिपेयर हार्ड। और ये लॉकडाउन है बट मेरी नज़र से देखो तो बहुत अच्छी बात है। एक तो आपकी हेल्थ ठीक रह रही है, दूसरा सेल्फ स्टडी की, खुद से पढ़ने की आदत वो भी डेवलप हो रही है, राइट? ओके, so that's the answer, and take a pause. Let's go to the next question. Question number 4, वापस वो कि फ्रस्टम का ही चैप्टर है तो सारे क्वेश्चंस फ्रस्टम जैसे ही होंगे। अ कंटेनर ओपन्ड फ्रॉम द टॉप एंड मेड ऑफ मेटल शीट is in the form of frustum of a cone of height 16 सेंटीमीटर। तुमने डायग्राम बनाया, हाइट गिवन लिखना चाहिए h, और वो भी सिंबल में, वर्ड्स में नहीं। डोंट राइट हाइट, राइट h इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर with radii of its lower and upper ends as 8 centimeters and 20 centimeters। तो अगर ये 8 है ये वाला 20 है, तो R1 is 8, R2 is 20। Find the cost of milk which can completely fill this container at the rate of ₹20 per liter। अरे कौन से जमाने का क्वेश्चन है, 20 रुपए किलो दूध कहाँ मिलता है? बट एनीवेज हमको तो क्वेश्चन के साथ ही चलना है। 20 रुपए किलो दूध है, कितने रुपए का दूध इसके अंदर आएगा? तो हमको पहले पता करना पड़ेगा ना कितने लीटर दूध आएगा, वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा इसका। और सेकेंड पार्ट बोलता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ metal sheet used to make this container if it costs ₹8 per 100 centimeter square। अब बर्तन है तो बर्तन में क्या क्या होएगा? बर्तन में बच्चों एक तो होगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होगा उसका ये बेस। बेस 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 यहाँ पर भी मेटल लगेगा ना, तभी तो दूध रुकेगा। अगर नीचे वाला बेस नहीं होगा तो दूध तो जिप से नीचे भाग जाएगा। तो हमको 3 चीजें गिवन है, लोअर रेडियस, अपर रेडियस एंड द हाइट ऑफ दिस। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। 2 पार्ट है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड बाद में उसकी कितने रुपए का दूध आएगा। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई इंटू h, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये फॉर्मूलाज बच्चों आपको बाय हार्ट याद रखने होंगे। नाउ 1/3 पाई को मैंने 3.14 लिया है बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया था 1.3.14 लो। इंटू h को मैंने 16 लिया है, 16 गिवन है हमको।
ये हाइट 16 है. So 8 square plus 20 square plus 8 into 20. I solve this and I get my answer as 10449.92 centimeter cube. ये तो वॉल्यूम है. मैंने पिछली बार भी एक बार क्लास में क्वेश्चन में करवाया आपको. 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स 1 लीटर होता है. तो 10,449.92 कितना हो जाएगा? 3 प्लेस ऑफ डेसिमल हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ, तो 10.449 liters of milk will come, or approximately we can say 10.5 liters of milk. Now 20 रुपए का 1 किलो है, तो 10.5 किलो कितने का होएगा, राइट? क्या मैंने 10.449 ही लिया है. So the cost of milk will be this number multiplied by 20, and that comes out to be 209 rupees. So the cost of the milk is 209. तो इसमें 209 रुपए का दूध आएगा 10.5 लीटर. दूध 20 रुपए किलो है, तो इसलिए 209 रुपए का दूध आ रहा है इसके अंदर. Now the second part of the question, समझ आया बच्चा? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. दैट मीन्स अगर हमारे पास एक क्यूब हो, कैसे बनाते हैं ऐसे, क्यूब हो हमारे पास, ऐसा जुड़ा, ऐसा जुड़ा, ऐसा जुड़ा, ऐसा जुड़ा. मेरा तो मैजिक है ना, इसलिए उड़ गया. तो हियर वी विल गेट 10 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter cube हो, तो we get 1000 centimeter cube, और उसमें 1 लीटर आता है. Question number 2, second part of the fourth question. 5 टोटल है, सेकेंड लास्ट पे है हम लोग. Find the cost of making the container if it costs 8 rupees per 100 centimeter square. Now ऐसा दूध उबालने वाला बर्तन में 2 एरियाज हैं. एक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्ट्रम प्लस एरिया ऑफ द बेस. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमको स्लांट हाइट चाहिए होती है L, और स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमने कल क्लास में किया था, x स्क्वायर प्लस बिग रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर का होल अंडर रूट. तो मैं हाइट मेरी 16 स्क्वायर है, R2 is 20, R1 is 8. So 20 minus 8 will be 12. 12 square is 144. Together is 400. Under root is 20. The slant length is 20 centimeter. Now let us put what are the given values and question number 1 in equation number A. A कहाँ पे है हमारे पास? A is my A question. Surface area किया here. इसके अंदर डालेंगे. We know the formula for curved surface area of a frustum is pi into R1 plus R2 into L, and the area of the base is pi R1 square. Circle का area pi R1 square. Pi common ले लिया, R1 R2 20 plus 8, L अभी ढूंढा हमने यहाँ पर 20 सेंटीमीटर्स, इसको यहाँ डाल दिया, और R1 का स्क्वायर is 8 square. Let's substitute, calculate, and we find the answer comes out to be 1959.4 centimeter square. अपने कैलकुलेटर पे जरूर करिएगा. कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है, सो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए अपना कैलकुलेटर यूज करने का. सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 रुपया. सो 1959 की क्या होगी? तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट यूनिटरी मेथड इज ₹8/100, and 1959.4 सेंटीमीटर की कॉस्ट 8/100 इंटू 1959.4. इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं. पहले 100 से 1 की कॉस्ट ढूंढो, फिर 1 के बाद 1959.4 की. ऐसा ही करते हैं. टोटल कॉस्ट आ गया ₹156.75. So that is the cost of making this utensil. कोई दिक्कत? हमने स्लांट लेंथ ढूंढा, हमने सरफेस एरिया ढूंढा,
फिर हमने यूनिटरी मेथड यूज किया टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग। तो ये लंबा है क्वेश्चन थोड़ा सा, प्लीज पॉज करिए, डायग्राम बनाइए, गिवन लिखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम ढूंढो, कॉस्ट ऑफ मिल्क कितने लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट पता है, उसको बनाने की, दूध उबालने वाले बर्तन को बनाने की कीमत ढूंढने के लिए सरफेस एरिया चाहिए, स्लांट लेंथ ढूंढा, सरफेस एरिया ढूंढा, और फिर यूनिटरी मेथड यूज किया कि 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर का कॉस्ट है 8 रुपया, तो 1959.4 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, एंड दैट आंसर इज 156.7। टेक अ पॉज एंड टेक अ नोट इन योर कॉपीज। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Let's read the question. It says a metallic solid right circular cone 20 centimeter high, ऐसा 20 सेंटीमीटर हाई, whose vertical angle is 60 degrees, ये ऊपर के कोन का एंगल है 60 degrees, is cut into 2 parts at the middle of its height। यहां से हमने काट दिया, टोटल हाइट थी 20, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे, सेंटर से काट दिया, जैसे गाजर होती है ऐसे गाजर को काट दिया हमने। ओके, पैरेलल टू इट्स बेस, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ 1/16 सेंटीमीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो हमने किसको पिघाला, इसको पिघाला, पिघाल के हमने तार बनाई, तार का डायमीटर हमको मालूम है 1/16 सेंटीमीटर, बताओ कितनी लंबी तार बनेगी। तो ये तो फ्रस्टम का चैप्टर भी हो गया और पिछला चैप्टर हो गया, दोनों का मिला के क्वेश्चन बन गया। रीमोल्डिंग, तो रीमोल्डिंग हमने पढ़ा हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में एक जो अच्छी बात है, नई बात है, वो ये है कि हमको रेडियस नहीं मालूम है, हमको ढूंढने पड़ेंगे। तो हमने जरा डायग्राम को देखो, पहले क्वेश्चन समझ आया सब लोग को। हमने एक कोन लिया, जो टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से हमने काट दिया, तो h पता चल गया, h हमारा 10 है, ऊपर वाला भी 10 है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैंने एक ट्राइंगल निकाल रहा हूं R1 और R2 ढूंढने के लिए, राइट। अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है हमने आपके साथ बच्चों, तो मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना अपने पास, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको और भी इजी लगने लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में नहीं दूंगा, बट बिकॉज थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर, बट फिर भी आप इसको लिख जरूर लीजिएगा, चाहे समझ ना भी आए आपको पूरा, फिर भी कोशिश करता हूँ आपको पूरा समझ आ ही जाए। तो हमको ढूंढना है OA मालूम 10, AC मालूम 10, और ये आधा एंगल 30 डिग्री, हमको R1 और R2 ढूंढना है। ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, so OA is 10 and OC is 20. Angle BOA, BUA, angle BUA is 30 degrees, and angle A and angle C are both 90 degrees. So right angle triangle है ये। Now एक ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो होता है जिसको बोलते हैं tan 30 डिग्री। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 इज अ रेशियो ऑफ थीटा के ऑपोजिट वाली साइड, ऑपोजिट अपॉन बेस। इसको तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना, ये तो आप जानते हैं, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन OA, OA इज 10, तो AB क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, AB विल बी इक्वल टू 10 tan 30 डिग्रीज। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, tan 30 डिग्रीज की वैल्यू जो है, tan 30 डिग्रीज की जो वैल्यू होती है वो होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है।
बाद में तो आपको याद रह जाएगी, लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। वी नो tan 30 इज 1/√3। सो R1 AB क्या है मेरा, व्हाट इज AB? AB इज द टॉप का रेडियस R1। R1 विल बी 10 डिवाइडेड बाय √3 सेंटीमीटर्स। ये हमने इस कोण का R1 ढूंढ लिया। सिमिलरली इन ट्राइंगल OCD, बड़ा वाला ट्राइंगल, अब OC हो गया 10 + 10 20, सेम लगाएंगे। tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू CD अपॉन 20। देखो CD विल बी इक्वल टू 20 tan 30। tan 30 कितना है, 1/√3, so that will be CD which is R2, CD is R2 will be equal to 20 by √3 सेंटीमीटर्स। एंड H हमको ऑलरेडी मालूम है, हमने सेंटर से काटा है, तो H हमारा 10 सेंटीमीटर है ही है। अब हमारे को R1 भी मालूम चल गया, R2 भी मालूम चल गया और हाइट भी मालूम चल गया। सिर्फ ये स्टेप आपके लिए थोड़ा सा नया है, इसको आप ऐसे ही लिख लो। ये बहुत इजी होता है, बट क्योंकि पढ़ा नहीं है तो शायद आपको कुछ एकदम नया नया लगेगा, बट इट्स ओके। तो हियर वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H into R1 square plus R2 square plus R1 into R2. Let us substitute the values of equation number 1, 2 and this is H in 3. So 1/3 into 22/7, height is 10. 10 by √3 का square plus 20 by √3 का square plus 10 √3 into 20 √3, R1 R2 की values। 10 का स्क्वायर होता है 100, √3 का स्क्वायर 3, so 100/3 plus 400/3 plus 200/3, √3 into √3 is also 3, so 400 plus 200, 600 plus 100, 700, 700/3, ये बन गया हमारा 220/21, राइट। सो 7 3s are 21, this is hundreds of, so हमारे पास आया 220 और 20 और by 9, and that volume is 2444.44 centimeter cube, 2444.44 centimeter cube. So the volume of this frustum is so much, right? तो ये पार्ट आपको सबको समझ आना चाहिए, फॉर्मूला में ही डाला। सिर्फ नई बात इस क्वेश्चन में है रेडियस की वैल्यू को ढूंढने का स्टाइल, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइडेड राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर लगती है ये। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो now B part of this question, this volume is converted into a wire, what is its length? Diameter मालूम 1/16 centimeters, therefore radius क्या हो जाएगा, हाफ, 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/32 सेंटीमीटर्स। एंड ये वायर जो होती है एक सिलेंडर होती है, एंड वी नो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज πr² into L इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम तो हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, इतना लिख दिया यहाँ पे, 22/7 into 1/32 का स्क्वायर into L, L तो पता नहीं है, इज दिस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, L इज इक्वल टू 2444.44 into 32 का स्क्वायर into 7/22, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7,96,444.44 सेंटीमीटर। मीटर में करते हैं, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमको ले जाना पड़ेगा उधर, तो ये बन जाएगा 7964.44 मीटर, अभी भी लंबा है। लेट्स मेक इट किलोमीटर्स, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इधर ले चलता हूँ तो मैं आएगा 7.964 किलोमीटर्स। मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग थिन वायर्स। तो ये जो हमारा फ्रस्टम है इसको पिघाल कर ऑलमोस्ट हमको कोई 8 किलोमीटर लंबी तार मिल रही है, ना, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर। So I hope you understand what I have done. You will always have to look at a question 2 times, those who have difficulty with mathematics। 2 बार समझो, ये बहुत अच्छी बात है,
वीडियो में आपको सॉल्यूशंस आते हैं, आप 2 बार 3 बार कितनी बार भी देख सकते हो। क्लास में तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना। सो एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक फैसिलिटी है। आप टीचर को बार बार अपने उंगलियों के इशारों पे फिर बुलवा सकते हैं, सेम वर्ड्स वो फिर बोलने आ सकते हैं। एंड आई लाइक दिस टेक्नोलॉजी, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, thank you very much. If you understood this lesson, please give a like in the YouTube. I will look forward to your likes, and please complete this work. God bless you. Stay blessed. Hopefully समर ब्रेक के बाद हम लोग मिल पाएंगे और हम आपके साथ एक टेस्ट कंडक्ट होगा पेन पेपर स्टाइल में। हम उसका पूरा शेड्यूल बना रहे हैं, किस तरह से हम आपको स्कूल बुला सकते हैं और क्लास वाइज बुला सकते हैं, अलग अलग टाइम पे बुला सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें। वी विल ऑल प्लान आउट दैट। एंड God bless you. Stay blessed. Stay happy. I wish you and your family health and happiness. Thank you very much. Bye bye.